للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، میں دل کی گہرائیوں سے ممنون کرم ہوں کہ آپ نے میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ میرے ایک عرصے سے خواہش تھی کہ کہوٹہ کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ باہمی نشستیں ہونی چاہیے، لیکن میرے پاس کہوٹہ میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسا ادارہ یہاں معرض وجود میں آ گیا کہ جس میں ان خواہشات کی تکمیل بآسانی ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ایک خاص نشست کی بنیادی غرض و غایت یہ تھی کہ یہ ادارہ جو آپ کے شہر میں قائم ہوا ہے، اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آپ حضرات کی رہنمائی حاصل ہوگی اور یقیناً آنے والے وقتوں میں پھر یہ ایک مرکز فہم و دانش بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ بگار شریف سے ایف ایس سی کرنے والا بچہ اگر کہیں امامت خطابت کے فرائض سر انجام دینا چاہے تو اسے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، اور اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی دینی مدرسے میں وہ داخل ہونا چاہے سند فراغت کے لیے تو اس کی گراؤنڈ تیار ہو چکی ہوگی۔ اب تھوڑا سا اللہ نے موقع دیا اور یہ ایک اپرچونیٹی ملی کہ یہاں پہ ہم کام شروع کریں، تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ کا گھر بنانا چاہیے، مسجد بنانی چاہیے۔ تو اس کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالی اور بھی اس کار خیر میں مدد فرمائیں گے۔ مسجد الہاشم کے نام سے یہاں مسجد آج آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد یہ کالج کا سلسلہ شروع کیا۔ جو بھی لا کالج کی ریکوائرمنٹس تھی، جو بھی بار کونسل کی طرف سے شرائط ہیں یا کالجز کے ڈائریکٹریٹ کی طرف سے شرائط ہیں، بڑی کڑی قسم کی شرائط ہیں یہاں۔ میں اتنا سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قدر پابندیاں ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب موجودہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کی سب سے پرانی یونیورسٹی اور ریپوٹیشن کے اعتبار سے بھی اس یونیورسٹی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ اکتوبر میں نومبر میں وہ یونیورسٹی جو ہے وہ کھول رہی ہے اپنی کلاسز پنجاب میں، اپنا جو اصل کیمپس ہے اس میں۔ تو پھر یہ آپ کا جو کیمپس ہے یہ بھی ان کا سب کیمپس ہوگا پنجاب یونیورسٹی کا۔ تو یوں ہی ادھر مین کیمپس میں کلاسز شروع ہوں گی انشاءاللہ العزیز، ہم یہاں بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہ ہم صرف سلیبس تک محدود نہ رہیں۔ سلیبس تو ہم وہی پڑھائیں گے جو پنجاب یونیورسٹی کا پرسکرائبڈ، جو پنجاب یونیورسٹی کا تجویز کرتا ہے، اس کے علاوہ تو ہم سلیبس نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن توسیع خطبات کے ذریعے، ایکسٹینشن لیکچرز کے ذریعے میری خواہش یہ ہے کہ 5 سال میں ہم ان بچوں کی فکری اور عملی وہ تربیت کر دیں کہ وہ دینی معلومات کے اعتبار سے بھی کسی مدرسے کے فارغ التحصیل طالب علم کی جو قانونی معلومات ہیں اس میں کم نہ ہوں۔ بلکہ انشاءاللہ یہ کردار ادا کرے گا
तो हमारी दुआएं भी, हमारे हर किस्म की जो ज़िम्मेदारी है, हक हम हमारे ज़िम्मा लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह इस इदारे से उम्मीद वासक रखते हैं कि 5 साल के बाद जो आने वाले हालात में दुनिया का नक्शा बदल रहा है और आने वाले हालात में उम्मत मुस्लिमा को जिन किरदारों की ज़रूरत है वो इदारा इंशाल्लाह ये पेश करेगा। किरदार यहाँ से जो निकलेंगे ऐसे तैयार हो चुके होंगे कि जो रहनुमाई करने के लिए उम्मत मुस्लिमा अपने आप को मायूस नहीं समझेगी। यकीनन बगार शरीफ की जो शुरू से पॉलिसी है वो हमेशा एतदाल पर रहते हुए सबसे बड़े कानूनदान साहबा के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े कानूनदान। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ बगार शरीफ मरकज़ से अल्लाह ने बहुत से और काम लिए हैं, तालीम के, तरबियत के खूबसूरत अंदाज में। हमारे कोटे के अंदर एक ख़ास ये भी खूबी है, हमारे थाने में एक असद साहब आए तो मुझे कहने लगे कि मुझे यहाँ आते ही नींद का जो है ना नींद करने का मौका मिल गया। मैंने कहा वो कैसे? कि यहाँ मैंने तफरकाबाजी नहीं देखी इतनी, इंतशार नहीं देखे। तो हम जहाँ जाते थे वहाँ कोई ना कोई इंतशार होता मस्जिदों में, बाकी मामलात में, लेकिन यहाँ अल्लाह का फजल है ऐसा मामला नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके असरात जो है ना वो बगार शरीफ की खूबसूरत पॉलिसी के असरात ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और इस कानूनी तकाज़े को आपने पूरा किया। और ये यहाँ से इंशाअल्लाह जो आपके फ़ज़ला निकलेंगे वो खूबसूरत माशरे की रहनुमाई करेंगे। हम इस सिलसिले में जो भी हमसे तावन हो सकेगा हाज़िर होंगे और खुशी समझेंगे। ये इदारा बनाकर उन्होंने कहा कि ये आपका अपना इदारा है और सही मानूं में इत्तेहाद उम्मत के हवाले से आपने एक नज़रिया दिया हमें, और अल्लाह उसके रसूल की तरफ से इंशाअल्लाह ये खानकाई सिस्टम है, खानकाई निज़ाम के तहत इस यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया। और यहाँ से जो वकला हज़रात पढ़ कर जाएंगे यकीनन उनको जो पॉलिसी मिलेगी, जो सोच मिलेगी वो मुतशद्दिदाना नहीं होगी, वो खानकाई निज़ाम के तहत इत्तेहाद उम्मत के हवाले से होगी और अमन मोहब्बत के हवाले से होगी। हम यकीनन हर कदम पर जनाब के अहसान ममनून है कि उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की और तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा को ये फरमाया कि ये आपका घर है। हम हर तरह से जानी माली बदनी जहाँ तक हमारी हैसियत हुई हम जनाब के कदमों में बैठ कर आपके इस अजीम मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो अभी मुझे खुशी हुई, यकीन माने सरदार साहब, जो इन्हिदाद का दौर है ना हर लिहाज से, इनमें कोई बंदा ऐसी कोशिश करता है तो हम जैसे छोटे कोशिश करें ना तो रास्ते में रोड़े भी आते हैं और फतवे भी लगते हैं। आप बड़े हैं, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अजर दे। ये आपकी कोशिश नहीं, आपका हुक्म था जो हम सब के लिए क्या कहते हैं सरताबी की मजाल है। अल्लाह आपको अजर दे। क्योंकि आपने पहले ही बुनियादी जो बुनियाद थी इस इदारे की जो आपने पहले से ही तैयार कर ली, और ये एक अगला कदम है, नेक्स्ट स्टेप है आपका। इंशाअल्लाह आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। हम सब आपके साथ दामे दिरहम सुखने हर एतबार से आपके साथ मामलत करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह आप हुक्म फरमाएंगे बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई। हम आपको जिस तरह उस्मानी साहब बता रहे थे हमारे पास आए, इंशाअल्लाह भरपूर तावन करेंगे और बाकायदा नौजवानों की तरबियत करके उनका ज़हन तैयार करके आपकी तरफ इंशाअल्लाह भेजेंगे और कदम ब कदम आपके साथ हैं। अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सबसे पहले तो मैं लेट आने की बात, दूसरा बात ये है कि मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मुझे याद है कि एक वक्त वो था कि बगार शरीफ में 6ठी क्लास से क्लासेस का आगाज़ हुआ था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ कि मेरे सारे बच्चों की तालीम भी वहाँ से तो बहुत कामयाबी के साथ आपने उसको किया। और हकीकत में जो खानकाई निज़ाम होता है वो यही होता है कि एक रूहानी तरबियत भी होती है और एक दुनियावी तरबियत भी होती है, और आपने वो करके दिखाया। उसी सिलसिले की ये कड़ी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये भी
उसी तरह कामयाब होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी दोस्तों ने अच्छे मशवरे दिए हैं। मेरा मशवरा तो क्या दूंगा मैं, मेरा ये है कि जिस तरह कहा गया कि जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और कोशिश की जाए कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, लायक है, उसको जो है ना वो उसका ख्याल रखा जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। मेरी काफ़ी अरसे से जो है ना मदबाना दरख्वास्त भी रही, गुजारिश भी और हाज़िरी भी होती रही कि हज़रत जो है ना एक दफ़ा हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। तो इनकी भी जो ना मजबूरियाँ, असफ़ात और मशगूलियात ऐसी मसरूफियात के हाज़रीन जैसा कि बहरहाल एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर अपने अपनी तजावीज़ और अपने अपने मशवरे, आरा और अपनी मारूज़ात पेश की हैं। तो मैं हज़रत को इनके जितने भी जो ना रुफ़क़ा हैं इन सब साथियों को दिल से जो ना मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंतहाई खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़रत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त, हसीन, खूबसूरत जो है ना स्टेज जो है ना हमारे सामने रख दिया है। तो अल्लाह पाक इसको जो है ना मज़ीद मुबारक फ़रमाए और आगे बढ़ने की इसी तरह से हमें तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। तो मैं अर्ज़ करूँगा, हज़रत उस्मानी साहब ने जिस तरह फरमाया कि हज़रत हमारे मस्जिदों के अंदर अपने नुमाइंदे भेजें, तो भाई मेरी जो है ना माज़र के साथ अर्ज़ ये है कि हज़रत को भेजने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम सारे इनके नुमाइंदे हैं। जब ये हुक्म देंगे, जिस तरह से हुक्म देंगे, हम अपनी अपनी मस्जिद के अंदर ख़ुद जो है ना इनका पैगाम, इनका मैसेज इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। और ये इदारा और ये कॉलेज हमारा अपना है, ये हज़रत का नहीं, ये हमारा है, मेरा है। तो इस कॉलेज की जो ज़रूरियात होंगी और मेरी जो ज़िम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह मैं जो है ना उसको निभाने की और उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत को हम इतनी ज़हमत नहीं देंगे कि आप अपना नुमाइंदा हमारी मस्जिद में भेजें और फिर जो है ना अनाउंसमेंट करे, वो ऐलान करे, वो लोगों को आगाह करे। नहीं, ये ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। हज़रत की तरफ से जो है ना सिर्फ हुक्म होगा और मुझे जो है ना पैगाम मिलेगा कि आपने ये ऐलान करना है, ये बात बतानी है कि लोगों को, अपने महल्ले वालों को, अपने नमाजियों को, अपने मस्जिद वालों को बताना, ये मेरी ड्यूटी होगी।